12 ଜାନୁଆରୀ 1863, 12 ଜାନୁଆରୀ 1863 ଏହି ଭାରତ ବର୍ଷର ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଏମିତି ଏକ ମହାତ୍ମାଙ୍କ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା ଯେ କି ଭାରତୀୟ ସନାତନ ସଂସ୍କୃତି ତଥା ମାନବ ଜୀବନର ମୂଳଭୂତ ସତ୍ୟକୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ପଟଳରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବାରେ ଏକ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଭୂମିକା ଧାରଣ କରିଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଆମେ ସେହି ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା ଯାହା ଯୋଗୁଁ ଭାରତ ମାତା ଅତୀତରେ ବର୍ତ୍ତମାନରେ ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ସदैବ ସର୍ବଦା ଗୌରବାନ୍ୱିତ ଗର୍ବିତ ଥିଲା, ଅଛି ଆଉ ରହିବ। ନମସ୍କାର, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ସନତ ମହାନ୍ତି ଜୀବନ ପଥକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆପଣ ମୋତେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠି ମୁଁ ଜୀବନର ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଓ ପ୍ରେରଣାପ୍ରଦ ବିଷୟମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବାଦ କରେ, ଚର୍ଚ୍ଚା କରେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଲମ୍ବା ହେବ କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପୁରା ଦେଖିଲେ ହିଁ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ କି ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କେତିକି ଜରୁରୀ ଥିଲା। 39 ବର୍ଷର ଆୟୁଷ ଏମିତି ଏକ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଜୀବନ ଯେଉଁଥିରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଜୀବନର ସଂଘର୍ଷ ଥିଲା, ଜୀବନକୁ ସତ୍ୟର ଆଧାରରେ ବଞ୍ଚିବାର ସାଧନା ଥିଲା, ସମର୍ପିତ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବ ଥିଲା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାରତୀୟ ସମାଜକୁ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାର ବିଚାର ଥିଲା, ବିବେକ ଥିଲା, ସାହସ ଥିଲା ଆଉ ସାମର୍ଥ୍ୟ ବି ଥିଲା। ସେ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ଆଉ କିଏ ନୁହନ୍ତି, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ନାମରେ ଚିହ୍ନି ଆସୁଛି। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଜି ଆମେ ସେହି ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରସଙ୍ଗରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଆଉ ଯଦି ଜୀବନରେ ଆଚରଣ ବି କରିବା ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆମ ଜୀବନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବଦଳିଯିବ। ଉନ୍ନତିର ମାର୍ଗରେ, ପ୍ରଗତିର ମାର୍ଗରେ, ଆଶ୍ୱସ୍ତିର ମାର୍ଗରେ ଆମ ଜୀବନ ଆଗେଇ ଯିବ। 11 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1893, 11 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1893 ଚିକାଗୋ, ୟୁଏସ୍ଏ ଆମେରିକା ବିଶ୍ୱ ଧର୍ମ ସଭା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ସେଦିନ ସନାତନ ସଂସ୍କୃତିର ଜଣେ ସନ୍ଦେଶବାହକ ଭାବେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଭାରତ ତରଫରୁ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ପ୍ରଥମେ ତ ହୀନମାନ୍ୟତାର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ, ଅପମାନର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ, କାରଣ ସେଠି ଗୋରା କଳାର ଭେଦଭାବ ଯଥେଷ୍ଟ ଥିଲା, ଅଶ୍ୱିତମାନଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଅବମାନନା କରାଯାଉଥିଲା। ତାର ମଧ୍ୟ ଶିକାର ଯଥେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲେ ସ୍ୱାମୀଜୀ। ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ବିଦ୍ୱାନ, ଧର୍ମଗୁରୁ, ଧର୍ମ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ନିଜ ନିଜ ଜ୍ଞାନ ଓ ତର୍କ ରଖିଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ 10 ମିନିଟ୍ ଲେଖାଏଁ ଦିଆଗଲା ନିଜ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଶେଷରେ, ପରିଶେଷରେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ନାମ ନିଆଗଲା। ସମୟ ଦିଆଗଲା ମାତ୍ର 2 ମିନିଟ୍। ତାଙ୍କ ବୟସ ମାତ୍ର 30 ବର୍ଷ। ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଗଲେ, କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ନୀରବରେ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଦେଖିଲେ। ଯେମିତି ମହାରଥୀ ଯୁଦ୍ଧର ଆରମ୍ଭରେ ଶଙ୍ଖନାଦ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଦେଖେ, ଠିକ୍ ସେମିତି। ଯେମିତି ଲାଗୁଥିଲା କି ସ୍ୱାମୀଜୀ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଏକା ନଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସହ ଥିଲା ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଇତିହାସ, ସନାତନ ସଂସ୍କୃତିର ଜ୍ଞାନଯୁକ୍ତ ଗାଥା। ସ୍ୱାମୀଜୀ କହିଲେ, ଆଉ ଯାହା କହିଲେ ସେଥିରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟର ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଭାରତୀୟ ସନାତନ ସଂସ୍କୃତିର ଯେମିତିକି ବିଜୟ ଧ୍ୱଜା ହିଁ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଗଲା। ସିଷ୍ଟର୍ସ ଆଣ୍ଡ ବ୍ରଦର୍ସ ଅଫ୍ ଆମେରିକା, ଆମେରିକାର ଭଉଣୀ ଓ ଭାଇମାନେ 7000 ଜନସମୂହ ସ୍ତବ୍ଧ ରହିଗଲେ, ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ ହୋଇଗଲେ। ଆଜ୍ଞା, ଯେମିତିକି କିଛି ଚମତ୍କାର ଘଟିଗଲା। 2 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରତାଳି ଚାରିଆଡ଼େ ବ୍ୟାପିଗଲା। ଏ ସମ୍ବୋଧନ ଏତେ ମର୍ମସ୍ପର୍ଶୀ ଆଉ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ଏଥିପାଇଁ ହୋଇଗଲା କାରଣ ଏ ଶବ୍ଦ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ମୁଖରୁ ନଥିଲା, ସନାତନ ଧର୍ମର ମୂଳ ସଂସ୍କୃତିରୁ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇଥିଲା। ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍। ସେଠି ବସିଥିବା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟର ବିଦ୍ୱାନ ଜନସମୂହକୁ ଏତିକି ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ହୋଇପାରୁନଥିଲା କି ହଜାର ହଜାର ମାଇଲ ଦୂରରୁ ଆସିଥିବା ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି, ଯାହା ସହ ନା ରକ୍ତର ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି, ନା ସଂସ୍କାରର, ନା ଭାଷାର, ନା ଭାବର, ତଥାପି ମଧ୍ୟ କେମିତି ସେ ଭଉଣୀ ଓ ଭାଇର ସମ୍ବୋଧନ କରିପାରିଲା। ଯେତିକି ଚକିତ ହେଲେ ସେତିକି ହୃଦୟରୁ ବି ଗଦଗଦ ହୋଇଗଲେ। ଏ ସମ୍ବୋଧନ କଲା ପରେ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ଭାଷଣର ଧାରା ପ୍ରବାହ ହୋଇଗଲା। 2 ମିନିଟ୍ ନାହିଁ, 10 ମିନିଟ୍ ନାହିଁ, 30 ମିନିଟ୍ ନାହିଁ, ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନବରତ ଭାବେ ଅବିରାମ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ଭାଷଣ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣକୁ, ବୁଦ୍ଧିକୁ, ହୃଦୟକୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଲା, ମୁଗ୍ଧ କରିଦେଲା। ସେ କହିଲେ, ଇଟ୍ ଫିଲ୍ସ ମାଇ ହାର୍ଟ ୱିଥ୍ ଜୟ ଅନସ୍ପିକେବଲ୍ ଟୁ ରାଇଜ୍ ଇନ୍ ରେସ୍ପନ୍ସ ଟୁ ଦ ୱାର୍ମ ଆଣ୍ଡ କର୍ଡିଆଲ୍ ୱେଲକମ୍ which you have given us। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଆନ୍ତରିକତା ସହ ଆମର ସ୍ୱାଗତ କଲେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଭାର। 11 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1893 ଯେଉଁ ଦିନ ବିଶ୍ୱ ଧର୍ମ ସଂସଦ ୱାର୍ଲଡ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ରିଲିଜିଅନରେ ସ୍ୱାମୀଜୀ ଭାଷଣ କରୁଥିଲେ, ତାହାର ପାଖାପାଖି 1.5 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଆମେରିକା ଆସିଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା,
आउ अमेरिकावासी तांको स्वागत सेतिकी घृणा सहित करथिले जहाँकि से अश्वैत कला लोकंक सहित करती 1.5 मास पर्यंत घृणा लांछना अपमान सही सही रही स्वामीजी किंतु कटु भाव नहीं शांत भाव से दिन चिकागोर विश्व धर्म संसद मंच उपरे स्वामीजी एका नथिले तांको सह थिला अखंड भारत वर्षर स्वर्णिम इतिहास सनातन संस्कृतिर ज्ञानयुक्त गाथा भारतर संस्कृति विषपान करी अमृत दान करिवार संस्कृति अटे महादेव आदिदेवंक संस्कृति अटे स्वामीजी 1.5 मास जाए आज्ञा 1.5 मास जाए अपमान रो विष पीथिले किंतु मुखरू जो शब्द बाहरी थिला सेथिरे आभार थिला कृतज्ञता थिला ग्रेटिट्यूड थिला स्वामीजी जो जीवन प्रसंग बहुत महत्वपूर्ण एथिरो आमे कौन मूल्य शिक्षा पाइले कि संसारर दुनियार कटुता निष्ठुरता अपमान रे विचलित न होई शांत रहिबा किंतु कौन आमे शांत रहुचे निज गंतव्य पथे आगे जीवा लक्ष्य को स्थिर करी कृतज्ञतार भाव धरी कृतज्ञतार भाव कहीं जरूरी जानती कारण एथिरे मन प्रतिशोध परायण हुए ना मन दुर्बल पड़े ना से कहिथिले कि एराइज एवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड अर्थ उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य बरा निबोधत ओडिया रे कोन कहउचंती कि उठ जाग आउ से जाए अटकिब नाही जेउ जाए तुम लक्ष्य प्राप्त होइनी ए सबू से दिनर जो वक्तव्य ता परदिन सकाळे अमेरिकार बड़ बड़ खबर कागज बड़ बड़ पत्रिका छपिला सेथिरु द न्यूयॉर्क हेराल्ड नामक पत्रिका सबुठ प्रसिद्ध थिला सेथिरे कोन छपिला कि स्वामीजी को सुनिबा परे लागुछि कि जेउ देश रे एते बुद्धिमान व्यक्ति रहंती से देश को क्रिश्चियन मिशनरी पठाइबा मूर्खतार परिचय न्यूयॉर्क क्रिटिक नामक पत्रिका रे कोन छपिला कि अनेक विद्वान मानक भाषण भल थिला किंतु भारतर साधु स्वामी विवेकानंद भाषण आगरे समस्ते फिका पड़ी गले स्वामी विवेकानंद आउ एक जीवन प्रसंग विषय चर्चा करिबा स्वामी विवेकानंद थरे यूरोप रो एक यूनिवर्सिटी रे लेक्चर देवाकू जाइथिले भाषण देवाकू जाइथिले भाषण सरिला सेठारे गोटिए सुंदरी विदेशी कन्या टिके दूररू तांकू देखुथाए किछि समय परे से स्वामीजी को एका देखी पाखक आसिला प्रणाम करी कहिला स्वामीजी मु आपणक द्वारा इम्प्रेस हो जाइछि आपणक द्वारा अनुप्राणित स्वामीजी मु चाहूछि कि मोर आपणक भली एक पुत्र संतान हो कौन आपण मो सह विवाह करिवे स्वामीजी हस हस मुहरे सम्मानर सहित कहिले तुमे जदि मो भली एक पुत्र संतान चाहूछ तेबे मो सह विवाह करबा तो किछि आवश्यक नाही बिना विवाह भी यह संभव झीटी कहला बिना विवाह आश्चर्य कहला स्वामीजी कहले हाँ बिना विवाह मो सह विवाह कले मो भली संतानटीए हब बोली किछि माने नाही तो निश्चित नाही तो मात्र मोते ही जदि तुमे पुत्र संतान रूपे स्वीकार करिव तेबे तुम इच्छा निश्चित रूपे पूर्ण होई जीवो आज्ञा सुंदरी विदेशी कन्या अबाक होई रही गला स्वामीजी मनर संयमता इंद्रिय नियंत्रण एवं ब्रह्मचर्य साधनर आगरे नतमस्तक होई तांकर शिष्या होईगला जीवन सारा पाई महिला मानंकु नहीं आउ एक प्रसंग चर्चा करिवा आज्ञा मेवाड़ राजा थरे स्वामीजी को निमंत्रण कले मेवाड़ राजस्थान मेवाड़ सेठर राजा थरे स्वामीजी को निमंत्रण कले आ स्वागत रे किछि महिला नर्तकी मानंकु नृत्यर आयोजन करथिले स्वामीजी यह देखि फेरी गले राजा पचारले स्वामीजी आपण मोर स्वागत को स्वीकार कलेनी स्वामी विवेकानंद कहिले महिला मानंकु नृत्य करिवार देखि सुख उपभोग करिवा मोर जन्मरु ही संस्कार रे नाही मन रखंतु कौन कहिले जन्मरु ही संस्कार रे नाही गुरुत्वपूर्ण विषय स्वामीजींकर एही दुईटी जीवन प्रसंग गोटे भारत रे आउ गोटे विदेश रे महिला मानंक सहित स्वामीजी एही दुईटी जीवन प्रसंग द्वितीय मूल्यवान शिक्षा दौची कौन कि जीवन रे चरित्र अर्थात कैरेक्टर बहुत महत्वपूर्ण माने कैरेक्टर सफा हेबा दरकार और कैरेक्टर केमिति सफा हबो सेति मनर संयमता इंद्रिय मानकर नियंत्रण ब्रह्मचर्य पालन एक अनिवार्य आवश्यकता जहाँकि आमको नित्य नैमित्तिक माने दैनंदिन जीवन रे आचरण करने को पड़ो नहले कैरेक्टर स्थिर हबनी सफा हबनी दिनकर कथा दिने स्वामी विवेकानंद तांको गुरु आश्रम को जाइथिले रामकृष्ण परमहंसଙ୍କ पाखकू सेठी तांको गुरुमा माँ शारदा देवी रोषेई कार्य करथिले सेथिरे किछि तांको सहयोगर आवश्यकता हला स्वामी विवेकानंद जाई तांको छुरीटिए देले कारण माँ मागिले छुरीटिए दियो बोली से छुरीटा देबा समय रे
छुरीर तीक्ष्ण भाग निज आड़कू धरिले एवं बेंट भागटाकू सी गुरुमा को बढ़ेले। ए सब घटना स्वाभाविक भाव में किसी विचार पूर्वक हैनी। गुरुमा बड़ प्रसन्नतार सहित स्वामीजी को पाखक डाकिले आउ मुंड को आउंसे कहले कि तुम स्वभाव रे कल्याणमय विचार अच्छी, करुणार भाव अच्छी, तुम द्वारा भविष्यत रे समाज रो अनेक प्रकार कल्याण हबो। ए सबुर अभिप्राय उद्देश्य बुझी न पारी स्वामीजी गुरुमा को पचारे, माँ को उद्देश्य रे तमे प्रकार कहल, कौन भाभी कहल? गुरुमा शारदा देवी से कहले कि बाबू तुमे अजाणतरे ही तुम स्वभाव रे करुणार स्वभाव अच्छी, दयार स्वभाव अच्छी, अन्य प्रति जत्नशीलतार भाव अच्छी। अर्थ तुमे अन्यर मंगल प्रथमे चाहूच, निजर नुह। एइटा स्वभाव रे जेतलो अजाणतरे आसी जाए सेतेबेले से प्रकार व्यक्ति महान हेवार संभावना को अधिक प्रकटित करे। आउ धारुआ भागटा जो तुम तुम आड़ को रखिल स्वाभाविक भाव में से तो मुझे जानी ही देली कि विवेकानंद माध्यम रे बहुत किछि बड़ बड़ संभावना संभव होगा जाउछि जहाँकि समाजर महान कल्याण साधन हम। से बंधु एथिरो आमे ए प्रसंग आमे एतिकी बुझी परिबा कि जीवन रे जत्नशीलता, जीवन रे करुणार भाव, दयार भाव, अन्य प्रति मंगल करिवार भाव एक नितांत जरूरी विषय जे कि आम जीवन को बहुत मूल्यवान करे, आम व्यक्तित्व को आ जीवन रो उद्देश्य को महत् करिवारे सहयोगी हुए। यही गुण एक अनिवार्य आवश्यकता जदि जीवनटा को आपण मूल्यवान करिया को चाहउछंती। करुणार भाव। दिने स्वामीजी विदेश यात्रा रे थिले, एमिति ही को गुडे स्थान रे से तांकर लेक्चर देवा को जाइथिले। लाइब्रेरी को बारंबार जाती। थरे जने विदेशी लाइब्रेरियन महिला लाइब्रेरियन थिले, से देखिले कि स्वामीजी सकाळ समय रे आसंती, गोटे मोटा पुस्तक मोटा बहीटे नियंती, संध्या समय रे फेरई दियंती। आउ थरे ता पर दिन आउ थरे गोटे मोटा बही नियंती, संध्या समय रे फेरई दियंती। आउ थरे ता पर दिन आउ गोटे मोटा बही नियंती। इमिति प्रतिदिन नुआ नुआ प्रकार रो बही नै कि फेरंती। से लाइब्रेरियन बड़ विचित्र भाव रे स्वामीजी को पचारला, तुमे कौन मजा करछ? प्रतिदिन आसुच, सकाळ समय रे नुआ नुआ मोटा बही नौच, संध्या बेले फेरई दौच, कौन चलची? पढ़ुच ना तमे खाली एठे तमे तमर समय बितौच? स्वामीजी कहिले स्मिता हास्य करी प्रसन्नतार सहित सम्मान सहित कहिले से भद्र महिला को लाइब्रेरियन को कहले कि मु पूरा बही पढ़ी दउची, पढ़िला पर ही आपन को फेरउची, मु आपनकर समय को नष्ट करनी, आपन सहित कौन उपहास करनी। तो से लाइब्रेरियन महिला लाइब्रेरियन आउरी विचित्र भाव रे सी विरक्त भाव रे सी कहले कि तमे आउरी मो सहित मजा करछ, एते बड़ मोटा बही एते कम समय रे पढ़ी दउछ, तमे जोड़ा पढ़िया को ही मास संख्या लागुची, तमे गोट दिन रे पढ़ी सार दउछ। से कहले हां मु पढ़ी की तो सारुची, आ सब किछि मोर स्मरण अछि। कहिबारु से विगत मासकर सबु जाक बही जहा जहा स्वामीजी नै थिले सबु जाक बही आनिले, आनी कि रखिले टेबुल ऊपर। से कहले मु पचारिबी, तमे कहि परिबो? से जहा जहा से लाइब्रेरियन पचारिले स्वामीजी ताहा ता उत्तर दे देले। आ एतिकी नुह, को पेज रे, को पृष्ठा रे, को पैराग्राफ रे कौन लेखा हेची एते सठिक भाव रे उत्तर देले। आश्चर्यचकित हो गले से लाइब्रेरियन। आ से लाइब्रेरी रे थिबा अन्य पाठक माने मध्य आश्चर्यचकित हेले। ए प्रसंग ए विषयटा चारियाडे प्रचारित हो गला। स्वामीजी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइंड माने मनर एकाग्रता, आ मनर एकाग्रता को ए प्रकार सी गढ़ी एते अदम्य प्रकार एते आश्चर्य शैली रे सी निजर मनर दृढ़ता को निर्माण करथिले जे तांको भितरे फोटोग्राफिक मेमोरी माने देखु देखु को हेले पृष्ठा को देखु देखु को अक्षर को वाक्य को देखु देखु तांकर मानस पटल लिपिबद्ध हो जाउथिला, स्मृति रे पूरा स्थिर रही जाउथिला, आउ केतल विस्मरण हो ही नथिला। एटा गोटे केवल मानसिक एकाग्रता कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइंड तो गोटे बहुत इंपोर्टेंट रोल प्ले करूची, किंतु ताठू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइंड सहित एटे ब्रह्मचर्यर शक्ति एवं आध्यात्मिक शक्तिर मध्य बहुत एथिरे अवदान थाउची। सेथिपई ए विषय रु आमे गोटे जिंस बुझिबा आवश्यक कि मनर एकाग्रता खाली पाठ पढ़ार आवश्यक नहीं, मनर एकाग्रता थिबा जोगु तांको पाखरे स्वामीजींको पाखरे गोटे अलगा प्रकार धी शक्ति थिला, बौद्धिक शक्ति थिला, जोथि जोगु प्रायतः जेतिकी सबु विद्वान माने मध्य तांको सम्मुखरे नतमस्तक हो जाउथिले। तो
गोटे मैग्नेटिक पावर गोटे चुंबकीय शक्ति थिला मनर एकाग्रता गोटे साधारण सामर्थ्य नुहे बंधुगण एई मनर एकाग्रता को हमें स्वामी विवेकानंद भली जागृत करि परिबा सेटा तो प्रायतः असंभव विषय किंतु एतिकी तो आमे शिखि पारुचे कि मन आमर जो प्रकार भी अछि ताठू टिके उन्नत शैली रे एकाग्र हो कारण मनर एकाग्रता खाली पाठ पढ़िबार उपयोग हुएनी जीवनर आवश्यकीय विचार एवं आवश्यकीय लक्ष्य को मध्य धारण करिबारे मनर एकाग्रता गोटे गुरुत्वपूर्ण भूमिका अवलंबन करुछि। रवींद्रनाथ टैगोर कहिथिले इफ यू वांट टू नो इंडिया स्टडी विवेकानंद जदि भारत को जानिबा को चाहुछ तेबे स्वामी विवेकानंद को पढ़। सुभाष चंद्र बोस कहिथिले स्वामीजी वाज सो प्रोफाउंड इफ ही हैड बीन अलाइव आई वुड हैव बीन सिटिंग ऑन हिज फीट। स्वामीजी एते महान थिले जदि से बंची थांते तेबे मु तांको चरण तले रहंती। महात्मा गांधी कहिथिले आफ्टर रीडिंग द वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद हिज लव फॉर हिज नेशन बिकम 1000-fold माने स्वामी विवेकानंद को पढ़िबा परे देश प्रति तांकर भक्ति 1000 गुण बढ़ीगला। देखंतु एई महापुरुष मानकर मध्य अवदान समाज प्रति व्यक्तिर जीवन प्रति भारतीय संस्कृति प्रति बहुत महान अछि। सेमानंकर मध्य स्वामी विवेकानंद प्रति एते दृढ़ एवं समर्पित भाव रहुछि एते विश्वासर भाव रहुछि एते आस्थार भाव रहुछि। सेथिपई बंधु माने आजी जहाँ भी किसी चर्चा कले जो विषय गुड़ाक प्रसंग गुड़ाक चर्चा कले स्वामी विवेकानंद जीवन प्रसंग उपरे आमे निहाती भावरे से सबु विषय को निजर दैनंदिन जीवन रे चिंतन करिबा एवं दृढ़ भाव रे आचरण करिबा को प्रयास करिबा। स्वामी विवेकानंद जीवनी आमको अनेक कथा शिखिबार अछि। जीवन बीती जीव आज्ञा तथापि मध्य शिखिबा बाकी रही जीव किंतु आजिर एही चर्चा आपण माननकु अवश्य मनन चिंतन करिबा आवश्यक। केउ घटनाटी आपणको अधिक आकर्षित एवं हृदय को स्पर्श कला मते कमेंट बॉक्स रे कमेंट करंतु। मु आशा करूछि भिडियोटी आपणको निश्चित भल लागिथिबो सकारात्मक प्रेरणा देथिबो पॉजिटिव इंस्पिरेशन मोटिवेशन देथिबो। चैनल टी को सब्सक्राइब करंतु भिडियोटी को लाइक करंतु आउ शेयर करंतु। धैर्यर सहित सुनिथिबा हेतु आपण सभी को धन्यवाद।